Hello everyone, this is Yati. Let's suppose I have created a short straddle or any portfolio and one of its leg hit stop loss or target and I wish to execute it again. Is there any provision? Yes. Backinja provides you an opportunity to re-execute a leg if it, in case your SL or the target gets hit. You can give command to the backend of re-execution. So if you want to re-execute the same leg as per all set conditions, then you can select this particular command of re-execution. You can set re-execution both on target as well as on a stop loss. Okay. This way you can give the command of re-execution. Now, let's understand it in a better manner. Suppose you have chosen this strike selection as relative. Usually traders they prefer relative when it comes to backtesting. Now it is very important to note that if strike selection is ATM क्योंकि अगर आपने relative को choose किया है then the strikes will be in terms of ATM, right? आप देख पा रहे हैं this blue band is representing ATM, ATM minus 50, ATM minus 100, all these are ITM and all these are OTMs, right? Now it is very important to note that if a strike selection is ATM while deploying straddle, जब आप अपना portfolio बना रहे थे आपने अगर इसको ATM choose किया है then अगर आपने टारगेट को प्रीमियम के टर्म्स में कुछ वैल्यू सेट करी है एंड इफ इट इज हिटिंग योर टारगेट देन आपका री एग्जीक्यूशन का कमांड आपने दिया है सो बैकेंसो विल री एग्जीक्यूट इट but it will select ATM as per underlying of that particular time. मतलब at the time of re-execution जब आपका टारगेट हिट हो गया उस टाइम पे आपका जो भी ATM होगा because ATM, ITM, OTM it keeps on changing, right? It cannot be same. तो उस टाइम पे जो भी ATM होगा उस ATM पे वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, री एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा. अगर आपने टारगेट बहुत छोटा दिया है देन चांसेस विल बी हाई कि आपका हो सकता है जो एटीएम है एटीएम का जो प्राइस है जो स्ट्राइक है वो सेम ही रहे ठीक है बट अगर आपने टारगेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा सेट किया हुआ है देन इन दैट केस आपकी जो स्ट्राइक होगी ओरिजिनल स्ट्राइक और जो री एग्जीक्यूशन की स्ट्राइक वो सेम नहीं होगी ओके वो because it keeps on changing, right? So if I say it in simple words, then this will simply create a copy of existing leg and execute as per leg setting, right? Now, let's understand it in a better and efficient manner. I'll also explain you the difference between re-execution and re-entry because many traders they just struggle with the concept of re-entry and re-execution. So let's talk about the re-execution first and then we'll move ahead towards re-entry. So री-एग्जीक्यूशन में सपोज आपने एक लेग सेल किया है 17,450 का एक सीई सेल किया है एट एन ओरिजिनल एग्जीक्यूशन प्राइस 93 आपने एसएल को सेट किया है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट 98 का आपने एसएल दिया है टारगेट आपने 88 बिकॉज ये सेल का ट्रेड है तो 93 पे आपने सेल किया था तो 88 आपने इसका टारगेट सेट किया मतलब नीचे की तरफ आपने टारगेट सेट किया तो जैसा कि मैंने आपको बताया दैट री एग्जीक्यूशन मेनी ट्रेडर्स दे प्रेफर री एग्जीक्यूशन इफ इट हिट्स योर स्टॉप लॉस एज वेल एज टारगेट तो दोनों में आप री एग्जीक्यूशन अप्लाई कर सकते हैं ओके मान लेते हैं इस केस में आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो गया है तो ऐसे केस में क्या करेगा बैकेंसो विल ट्राई टू री एग्जीक्यूट लेग which is an exact copy of the leg and execute that as per all settings defined for original leg. आपने जो भी इसको settings दी हुई हैं define करी हुई हैं it will try to make an exact copy of that particular leg. Now on contrary re-entry में क्या होता है 18,000 का CE अगर मैंने सेल किया है at an original execution price of 100 rupees एसएल मैंने मान लेते हैं 20% पे सेट किया है तो 120 पे विच कम्स आउट टू बी 120 राइट सो 120 मेरा एसएल है एंड एसएल गॉट हिट मेनी ट्रेडर्स दे प्रेफर री एंट्री फॉर स्टॉप लॉस राइट
री एग्जीक्यूशन दे प्रिफर इट ऑन बोथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ओके, तो मान लेते हैं री एंट्री में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो अब बैकेंजो क्या करेगा, बैकेंजो विल मॉनिटर द सेम स्ट्राइक एंड द सेम ओरिजिनल एवरेज प्राइस एग्जीक्यूशन, राइट। यहाँ पे आपका जो एवरेज प्राइस है वो 100 है और एवरेज जो ओरिजिनल स्ट्राइक प्राइस है दैट इज 18,000 सीई, राइट। सो 18,000 सीई को वो मॉनिटर करेगा और उसके प्राइस को मॉनिटर करेगा। जब प्राइस 100 के पास आएगा तब वो उसको री एंट्री कराएगा, right? So this is the basic difference between re-execution and re-entry. I hope it is clear because many traders they struggle with the concept of re-entry and re-execution. Now, coming back to our topic, that is our re-execution, right? So I am going to set target in terms of premium, and I'm defining target value as 5 in points as well as in percentage, both you can define. Okay, stop loss मैं नहीं रख रही हूँ, just to keep it simple. Okay, same way you can apply it on stop loss as well. Okay, now अब आप यहाँ पे टारगेट पे आपने यहाँ पे टारगेट पे प्रीमियम के टर्म्स में सेट किया है। नाउ कम्स ऑन टारगेट, इफ इट हिट्स योर टारगेट देन व्हाट नेक्स्ट, राइट। देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, री एग्जीक्यूशन का कमांड दे सकते हैं बैकएंड्स को। सो इफ इट हिट्स योर टारगेट इट विल बी री एग्जीक्यूटेड। नाउ देयर अ काउंट कंट्रोलर बटन, डू यू सी दिस बटन, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स you want it to be re-executed. So suppose I am defining it as 2 for both the legs, okay, and I'll name it as re-execution. Okay, whatever name you want to give it as, I am naming it as re-execution. Just click on the save portfolio, right, and my portfolio is ready. Just enable it, recalibrate it, run it on simulator. You can choose date of your choice. I'll choose it as 18th October 2022. I'll click on the strict timing. If it is strict, then simulation will work strictly from start time and the square of time. I'll just click on the start button and my login is successful. You can monitor your position from here under this position grid. My start time was 9:20 and that's the reason it entered into the position at that particular mentioned start time, right? As you can see that this is my CE leg, this is my PE leg of a straddle, right? And this is my original sell average price. So for the CE, it is 106.50 is my average sell price, and herein it is 93, right? मैंने यहाँ पे target 5 points का define किया है, 5 points for both the legs, right? Now go to the multi-leg. Just click on this plus button. You will see here 2 legs, right? यहाँ पे आपको 2 legs दिख रहे हैं. If you scroll it down, आपको यहाँ पे option portfolio दिखेगा, right? इसको आप expand करके नीचे की तरफ देख सकते हैं आपके 2 legs straddle के, right? यहाँ पे average entry price 106 है, 106 of this particular CE leg, and here it is 93, right? मैंने 5 रुपीज का टारगेट सेट किया है फॉर these 2 legs, right? Now I'll just increase the speed. Let's see if it hits our target. Then I'll be able to showcase it too. Yes, yes, it got hit, right? मेरा टारगेट हिट हो गया है और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक किसका, यहाँ पे जो PE है ये आपको थर्ड लेग दिख रहा है, राइट? तो दिस PE यानी PE का मेरा टारगेट हिट हुआ है एंड इट गॉट री एग्जीक्यूटेड अगेन। बट आपने नोटिस किया यहाँ पे कि ये जो एवरेज एंट्री प्राइस है और एवरेज एंट्री प्राइस और ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एवरेज स्ट्राइक प्राइस, राइट?
17,400 पीई आपका ओरिजिनल स्ट्राइक प्राइस था जब हमने स्ट्रैडल को डिप्लॉय किया था, राइट? बट ये जो थर्ड लेग क्रिएट हुआ, री एग्जीक्यूशन का जो थर्ड लेग क्रिएट हुआ, वो 17,500 का पीई हुआ। दैट मीन्स ये दोनों स्ट्राइक प्राइस अलग अलग हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू उस वक्त का, एट द टाइम ऑफ री एग्जीक्यूशन, उस वक्त का जो भी एटीएम होगा वो उसको री एग्जीक्यूट करेगा। तो आफ्टर 5 पॉइंट्स ऑफ टारगेट हमारा एटीएम ये बन गया 17,500 पी। दैट्स द रीजन आपका ये एग्जीक्यूट हुआ। ओके, so this is the concept of re-execution. Now I'll increase the speed a little more. If you see, there is so much of UI updation that is going on under multi-leg grid, right? If you click here at the backtest result, आपको यहाँ बैकटेस्ट के रिजल्ट पे कोई यूआई अपडेशन नहीं दिख रहा है, तो आपकी ये जो क्लॉक होगी ना वो बहुत फास्टर मूवमेंट देने लग जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं मल्टी लेग पे और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। वाओ, आई गॉट अनदर फोर्थ लेग, राइट? मुझे एक फोर्थ लेग भी देखने को मिल गया, राइट? आई विल जस्ट डिक्रीज द स्पीड। अब यहाँ पे मुझे एक और पीई का लेग देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि आपका ये वाला लेग और ये वाला लेग दोनों सेम है, राइट? क्योंकि मैंने टारगेट बहुत छोटा सा मेंशन किया था, तो ये दोनों लेग्स आपके री एग्जीक्यूशन के लेग्स हैं, राइट? मैंने 5 पॉइंट का टारगेट सेट किया था, तो जब ये इसका टारगेट हिट हुआ, ये जो मेरा फर्स्ट वाला जो ओरिजिनल था, इसका जब टारगेट हिट हुआ तो इसने दूसरा री एग्जीक्यूशन दिया, एंड विच इज दिस वन 17,500 का पीई, राइट? और इसका भी टारगेट हिट हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका भी टारगेट हिट हो गया और इसका स्टेटस कंप्लीट हो गया। इसने फिर से री एग्जीक्यूट किया और इस टाइम पे मेरा री एग्जीक्यूशन में मेरा स्ट्राइक प्राइस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा टारगेट मेंशन किया था, तो उतने में उस टाइम पे स्ट्राइक चेंज नहीं हुए, राइट? सो दैट्स अ रीजन आपको यहाँ पे 17,500 का फिर से देखने को मिला, राइट? और अब अगर आप पोजीशन पे जाते हो तो यहाँ पे आपको लाइव पीएनएल और सब देखने को मिलता है ना। यू माइट बी वंडरिंग कि यहाँ पे तो मुझे 3 ही लेग्स देखने को मिल रहे हैं, वेरएज जब मैं मल्टी लेग पे जा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन पोर्टफोलियो में 4 लेग्स देखने को मिल रहे हैं। व्हाई इज इट सो, राइट? दिस क्वेश्चन में पॉप अप इन योर माइंड, राइट? सो अगर आप देखोगे ये दोनों आपके री एग्जीक्यूशन के लेग्स है, क्योंकि मैंने री एग्जीक्यूशन 2 टाइम्स डिफाइन किया था अंडर काउंट कंट्रोलर, राइट? और ये दोनों ही जो लेग्स हैं वो 17,500 के पीई हैं, राइट? आप देख पा रहे हो 17,500 के पीई हैं, यानी री एग्जीक्यूशन वाले लेग्स हैं, राइट? नाउ इफ यू गो टू द पोजीशन टैब, ओके, यहाँ पे आपको 17,500 का पीई देखने को मिल रहा है, राइट? यहाँ पे सिर्फ सिंगल 17,500 का पीई है। Why is it so? I have taken a snipped image, okay, just to showcase it to you in a better manner, okay? Now, if you see here, आपका जब ये वाला लेग एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे सेल क्वांटिटी थी 50, राइट? एज यू कैन सी इट वाज 50 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट री एग्जीक्यूशन। बट जब इसका भी टारगेट हिट हो गया तो इसने फिर से री एग्जीक्यूशन दिया और अब आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी देखने को मिल रही है, राइट? यहाँ पे आपको 100 क्वांटिटी देखने को मिल रही है तो दोनों ही 17,500 के, राइट? बट क्वांटिटी यहाँ पे आपको एड ऑन दिख रही है, बिकॉज सेम स्ट्राइक है तो क्वांटिटी यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो गई। So this is the concept of re-execution. I hope this video will help you in a better and efficient manner. Thank you for watching. Stay tuned for more such videos. Thank you so much.